Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System, and today is our lecture 5 for course of steel structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in structural engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 5 and week number 5. So in our today's lecture, we will continue our previous topic on the analysis and design of tension members, as we have already discussed in our previous class. So these are your reference text books. इन books के अलावा अगर आपके पास कोई और book available है तो उसको भी आप follow कर सकते हैं. Summary of the previous lectures. इस course में सबसे पहले हमने steel structures, mention about steel in Holy Quran, steel treatments and making processes, and how the physical properties of steels are being affected by different types of compositions. And then we discussed about structural steel types, built-up sections, modern steels, mechanical properties, advantages and disadvantages. And then we discussed several methods such as various types of LRFD, ASD, limit states, plastic design limit states. उसके बाद हमने loads, different types of load combinations, various design methods भी discuss किए. And then in our last class we also discussed about analysis and design of tension members. तो कुछ topics हम उस class में discuss कराए थे. मजीद जो है वो analysis and design of tension members आज हम discuss करते हैं. So in our today's lecture, first of all we will discuss about the net area of structural steel shapes, and then we will go for the design of tension members. उसके बाद हम कुछ design examples, analysis and design of tension members के कुछ design example भी solve करेंगे, and then we will discuss about the members under stress reversal. स्ट्रेस रिवर्सल में किस तरह से मेंबर्स जो हैं वो फेस करते हैं स्ट्रेस रिवर्सल को, या उस केस के अंदर जब आपके पास कम्युलेटिव, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बोथ किसी मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहे हों तो हम किस तरह से उनको डील करते हैं. सो नेट एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल शेप्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस नेट एरिया और ग्रॉस एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल शेप्स. समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो सेक्शंस होते हैं, जैसे आई सेक्शंस है, चैनल सेक्शंस हैं, डब्ल्यू सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया. The structural shapes basically are assumed to be flattened out into single plates. कि एंगल सेक्शन की एक एंगल होती है, आपको ऑलरेडी एक बिल्ट अप सेक्शंस में पीछे हम डिस्कस कराए. हम उनको ट्रीट करते हैं एज अ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स. तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर रोटेटेड अंटिल दीज बिकम इन द सेम वर्टिकल प्लेन. कि जो एंगल है उस एंगल को हम रोटेट करके एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम डिजाइन करते हैं. So general procedure may be used to calculate the net area in which all possible failure planes are considered. A great care is required to use the thickness of various parts. For example, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, let's suppose we have a W section here. इसके वेरियस जो है वो फ्लैंजेस हैं, टॉप फ्लैंज है और बॉटम फ्लैंज है. हम क्या करते हैं कि जो फ्लैंजेस है उन फ्लैंजेस को रोटेट करके इस मेंबर को स्ट्रेट कंसीडर करते हैं. यहाँ पे जो एरोज नजर आ रहे हैं इसको हमने रोटेट इस तरफ कर दिया, इस मेंबर को रोटेट यहाँ कर दिया, ये दोनों साइड जो है वो नीचे आ गई. तो ओवरऑल डायमेंशंस और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरह से नजर आता है कि दोनों जो अपवर्ड फ्लैंजेस हैं वो दोनों स्ट्रेट प्लेट की तरफ कन्वर्ट हो गई और डाउनवर्ड फ्लैंजेस जो है वो दोनों इस तरह से कन्वर्ट हो गई. और ओवरऑल जो डेप्थ थी वो डेप्थ बेसिकली आपकी जिसके अंदर से आप दोनों थिकनेसेस जो है वो माइनस कर देते हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी यहाँ से यहाँ तक बच जाती है. ये आपकी थिकनेस ऑफ द वेव हो गई. और जो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज बेसिकली वो यहाँ पे तो सेपरेट एक थिकनेस थी, लेकिन जैसे हम इसको कंबाइन करके यहाँ ले आते हैं इस पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो है वो डबल हो जाती है. A great care is required to use the thickness of various parts in the formulas because it may be double of the actual thickness of the part. कि वो डबल हो जाती है क्योंकि जब आप उसको टिल्ट कराते हैं. For example, the thickness of the flange is to be considered double in the analogous section, जो कि हमने अभी पिक्चर के अंदर देखा. The inclined part sometimes जो है वो हम उस inclined part को कंसीडर करते हैं, sometimes हम उसको कंसीडर नहीं भी करते, इग्नोर कर देते हैं. So this was for W section. As we flatten this type of W section, उसके बाद हमारे पास क्या dimensions और किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. और इसी तरह से अगर हमारे पास एक एंगल सेक्शन है तो एंगल सेक्शन के अंदर जो एक लेग है उस लेग को हम स्ट्रेट कर देते हैं. लेग इज टर्न थ्रू 90 डिग्री. जो एक 90 डिग्री के ऊपर आपकी एक लेग नजर आ रही है, इसको हम रोटेट करा के इसको स्ट्रेट प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये स्ट्रेट फॉर्म आपको नजर आ रही है. तो टर्निंग लाइन बेसिकली जिस लाइन के ऊपर हम इन दोनों प्लेट्स को सीधा करते हैं एज अ कंसीडर करते हैं इमेजिनरी. ये कोई हम हथौड़े के जरिए या हेल्पिंग हैमर के जरिए जो है वो हम इसको स्ट्रेट नहीं कर रहे, हम इमेजिन कर रहे हैं बेसिकली. तो यहाँ पे इस केस के अंदर
जब आपने इस मेंबर को स्ट्रेट किया तो आपके पास जो गेज डिस्टेंसेस थे, ये गेज ए और गेज बी डिस्टेंसेस, ये दोनों तो आपके पास कॉमन रहे, लेकिन यहाँ पे हाफ थिकनेस, इस प्लेट की हाफ थिकनेस यहाँ से और यहाँ से हाफ थिकनेस, ये दोनों थिकनेसेस जो है वो डिडक्ट कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस बच जाता है सेंटर ऑफ द होल टू सेंटर ऑफ अदर होल, गेज ए प्लस गेज बी माइनस टोटल थिकनेस, हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा मेंबर है उसके डायमेंशन हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सेक्शंस को फ्लैटन करके हम जो है वो नेट एरिया एंड ग्रॉस एरियाज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। सो डिटरमाइन द नेट एरिया फॉर एंगल गिवन इन फिगर 2.10 इफ 18 मिलीमीटर डायमीटर फास्टनर्स आर यूज्ड। नॉर्मली होता क्या है कि ग्रॉस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल कम्युलेटिव एरिया ऑफ द सेक्शन। अगर उसके अंदर आप होल्स वगैरह बना लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास नेट इफेक्टिव एरिया आ जाता है। अब इस डिजाइन के अंदर हमने एक नेट एरिया कैलकुलेट करना है एक एंगल सेक्शन का। उस एंगल सेक्शन के लिए हमारे पास जो डायग्राम है वो गिवन है कि L 150/102 × 12.7 का एंगल सेक्शन आपको गिवन है। एंगल सेक्शन के अंदर ये दोनों जो फर्स्ट डायमेंशन होती हैं, लेग्स की डायमेंशन होती हैं, ये आपका जो लास्ट डायमेंशन होता है 12.7, ये उसकी थिकनेस कहलाती है। अब ये हमारे पास एक प्लेट जो है वो अगर यहाँ से आप इसको इस डायरेक्शन के अंदर देखना स्टार्ट करो तो ये आपको यहाँ से इस तरह से एक प्लेट नजर आती है। ये आपका थिकनेस आ गई यहाँ पे, और सेंटर टू सेंटर बिटवीन द होल्स डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड की तरफ से हमें 76 मिलीमीटर गिवन है। जो गेज 1 डिस्टेंस है वो एक लेग का, वो हमारे पास 57 मिलीमीटर है, गेज 2 64 एंड गेज इन द बॉटम डायरेक्शन जो आपके पास 64 का गिवन है। और होल्स का जो डायामीटर है बेसिकली या फास्टनर्स का डायामीटर है वो 18 मिलीमीटर का हमें गिवन है। हमने क्या किया, आफ्टर ओपनिंग द सेक्शन हमने उस जो प्लेट थी, इस प्लेट का जो सेक्शन था इसको स्ट्रेटन कर दिया, इस तरफ ओपन कर दिया, यानी ये आपका एंगल जो है इसको टिल्ट करा के हम इसको बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में एक प्लेट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास सिंगल प्लेट इज ऑब्टेन्ड एज कैन बी सीन हियर कि हमारे पास वेरियस जो है वो होल्स बने हुए हैं। वो होल्स के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 76 मिलीमीटर का है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर द नेट एरिया के नाउ बी मेड फॉर वेरियस प्लेन्स लाइक AC कि हमें ये तो पता है कि जब हम नेट एरिया कैलकुलेट करते हैं तो अंडर द रप्चर लोड, अंडर द यील्डिंग स्टेज, आपका मेंबर जो है वो उस स्टेज पे फेल होता है जहाँ पे उसका एरिया कम हो जाता है, और होल्स होने की वजह से वहाँ पे उस सेक्शंस के अंदर जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमेशा आपका जो फेल्यूर अपीयर होता है वो उन जोन के अंदर होता है जहाँ पे एरिया कम होता है। तो हमारा फेल्यूर प्लेन पॉसिबल कौन से हैं कि हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से भी मेंबर फेल हो सकता है, ABC फॉर्म में भी फेल हो सकता है और ABD फॉर्म में भी फेल हो सकता है। इवन सम केसेस के अंदर अगर यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूं E, इसको मार्क कर दें F, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, EFD के फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ से EBC के फॉर्म में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं हमारे पास। तो हमने मिनिमम 3 जो सेक्शंस हैं वो सिलेक्ट कर लिए, AC सेक्शन, ABC सेक्शन एंड ABD सेक्शन। अब यहाँ पे जब हमने मेंबर को फ्लेट कर लिया इस डायरेक्शन से, जब हमने मेंबर को स्ट्रेटन किया तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरियस डायमेंशंस बच रही हैं वो किस तरह से निकालते हैं, गेज 1 प्लस ये हमारी प्लेट जो सीधी हो गई तो यहाँ पे ये गेज 2 ऐड हो जाता है। हाफ थिकनेस फ्रॉम अबव साइड, हाफ थिकनेस फ्रॉम लोअर साइड हम डिडक्ट कर देते हैं। तो 51 जो है वो अबव डिस्टेंस था हमारे पास, सॉरी जो हमारे पास 57 था वो अबव गेज डिस्टेंस है, और 64 जो है वो लोअर गेज डिस्टेंस है। उसमें से हमने 12.7 थिकनेस उसकी डिडक्ट कर दी, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस बच जाता है वो 108.3 मिलीमीटर बच जाता है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इमेज और पिक्चर आ जाती है। आफ्टर ओपनिंग द सेक्शन, हमने सेक्शन ओपन करने के बाद एक सिंगल प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट के फॉर्म में नेट एरिया कैलकुलेट करना था। अब जहाँ पे होल्स है हमारे पास उस सेक्शन के अंदर हमने मिनिमम एरियाज कैलकुलेट करने हैं, और मिनिमम एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो हमारी जो है वो फेल्यूर प्लेन उस रीजन के अंदर अपीयर होता है। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग पाथ AC कि फेल्यूर जो है वो हमारा यहाँ पे पाथ AC के अंदर डेवलप होता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। हमने यूज किया नेट एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस N D प्लस 3 इंटू T। अब तो जो सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शंस हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो हम हमेशा मैनुअल या की के जरिए से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो की के अंदर गिवन है। तमाम AISC, LRFD, ब्रिज डिज़ाइन मैनुअल या LRFD जो है वो हमारे पास स्टील डिज़ाइन मैनुअल्स जो अवेलेबल हैं, उन मैनुअल्स से हम तमाम स्पेसिफिकेशन, जो चैनल सेक्शन आप यूज़ कर रहे हो, एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हो, तमाम प्रॉपर्टीज उसके अंदर अवेलेबल हैं, वहाँ से हम सेक्शंस की जो डिटेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं।
तो ग्रॉस एरिया हमारे पास जो चैनल एंगल सेक्शन था उसका ग्रॉस एरिया 3060 है, नंबर ऑफ होल्स हमारे पास 2 हैं, डायमीटर ऑफ द फास्टनर 18 मिलीमीटर प्लस 3 प्लस टी जो है वो हमारे पास थिकनेस ऑफ द एंगल प्लेट ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो वैल्यू है एरिया नेट एरिया वो 27 मिलीमीटर स्क्वायर आ गई। इसी तरह से अगर हमें पार्ट्स ए बी सी और ए बी डी पार्ट्स की बात करें तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कराएं, ग्रॉस एरिया माइनस एन नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ फास्टनर्स, d plus 3 into t plus sum of distances and stagger distances and जो है वो gauge distances हैं into thickness। तो ये तमाम वैल्यूज जब हमने पुट की, एक एरिया हमारे पास 27 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, दूसरा एरिया जो है वो 16 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। जो लोएस्ट एरिया है दैट एरिया बेसिकली जो है वो कंट्रोल्स द सेक्शन, यानी कि वहाँ पे आपका जो फेल्यूर है वो अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्बत अदर जोन के। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो नेट एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी एंगल सेक्शंस का या किसी जो है वो चैनल सेक्शन का, उस तरह से आपने जो है वो वेरियस वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं नेट एरियाज की, वो हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट आर द डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द टेंशन मेंबर्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टेंशन मेंबर्स बेसिकली आर दोज मेंबर्स व्हिच आर फेसिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस उन मेंबर्स के अंदर होती हैं। अब जब हम एलआरएफडी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, LRFD मेथड बेसिकली क्या कहता है कि यू हैव टू यूज 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट फैक्टर इज द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर एंड सेकंड बेसिकली इज द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर तो हम डायरेक्टली लोड्स के साथ अप्लाई कर देते हैं, डेल लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड है, सीस्मिक लोड है, जो भी आपके पास लोड्स के साथ जो फैक्टर्स आ गए वो सारे लोड फैक्टर्स कहलाते हैं, जिसको हम फैक्टर लोड्स कंसीडर करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स ड्यू टू मटीरियल्स, कि मटेरियल्स की वजह से, फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर ऑफ मटेरियल हमने कंक्रीट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, स्टील के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, जो हमारा स्पेसिफिक मटेरियल है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, वर्टिकल इलास्टिसिटीज हो गई, इनर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बाद जो हमारे पास सेक्शनल मॉडुलस हो गया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उसके अंदर हम रिड्यूस कंसीडर करके स्ट्रेंथ को हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास एक डिजाइन गाइडलाइंस थी। अदर नोटिफिकेशंस बेसिकली क्या होती हैं, अदर नोटेशंस आर कि हम इस केस के अंदर रिप्रेजेंट कराते हैं TU एज अ अल्टीमेट फैक्टर टेंसाइल लोड एंड TA इज एन एक्चुअल और अलोएबल सर्विस टेंसाइल लोड एंड देन वी हैव अ साइटी फैक्टर इज द रेजिस्टेंस फैक्टर मल्टीप्लाइड विद द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। नॉर्मली ये 0.9 यूज होता है व्हेन फेल्यूर अकर्स बाय यील्डिंग एंड 0.75 व्हेन फेल्यूर अकर्स बाय fracture in the material. And then Tm basically is representing the nominal strength of the tension member and psi Tn basically is the expected strength to be designed in the LRFD design procedure, जिसको हम nominal strength को psi T यानी कि reduce करके consider करते हैं, जिसको हम design strength basically कहते हैं। And Tm over omega T basically is a factor to use for the allowable stress design method, कि जब आप ASD method use करते हैं उस केस के अंदर आपके पास ओमेगा का फैक्टर आ जाता है। तो दोनों फैक्टर्स या दोनों मेथड्स के अंदर LRFD और ASD मेथड की जो जनरल इक्वेशंस हैं, डिजाइन इक्वेशन दैट आर अलोएबल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू psi T इनटू नॉमिनल टेंसाइल लोड, ये फार्मूला यूज होता है फॉर LRFD पर्पसेस। और अलोएबल या जो है वो आपका एक्चुअल टेंसाइल लोड कैपेसिटी मस्ट बी लोअर देन इक्वल्स टू nominal tensile load divided by omega T factor. This will be used in the case of the allowable strength design method. तो ये हमारे पास दोनों डिजाइन मेथड की इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हमने यूटिलाइज करना है और हम जो है वो डिजाइन एग्जांपल्स हमने आज सॉल्व करने हैं। So in normally according to AISC we are normally facing 2 major types of failures, and that failures are yielding in the gross section. Number 1 is the yielding limit state. Yielding जो फेल्यूर जो अपीयर हुआ वो yielding ऑफ स्टील की वजह से अपीयर हुआ। इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि नॉमिनल लोड, नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इनटू द ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन, कि ग्रॉस एरिया कंसीडर हो रहा है क्योंकि यील्डिंग ऑफ द मेंबर हो रही है ओवरऑल, क्योंकि उस मेंबर के अंदर कहीं पे होल्स वगैरह नहीं है, ओवरऑल सेक्शन जो है वो यील्ड कर रहा है, उसके अंदर हम क्या करते हैं ग्रॉस एरिया कंसीडर करते हैं। लाइक वेल्डिंग के केस के अंदर भी हो सकता है, लाइक अदर टाइप्स ऑफ जिसमें फास्टनर्स और होल्स वगैरह मेंबर के अंदर नहीं होते नॉर्मली, उन केस के अंदर जो है वो यील्डिंग लिमिट स्टेट फार्मूला या मेथड अप्लाई हो रहा होता है। सो साइटी फैक्टर इज वैल्यू इज 0.9 और LRFD केस के अंदर, और ओमेगा बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ 1.67 इनटू अलोएबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड। So for LRFD design, ultimate tensile load capacity is equals to psi T into nominal tensile load is equals to psi T yield strength of steel। हमने सारी equations की just values को put करते जा रहे हैं।
SIT Fy yield strength of steel divided into gross area of the section divided by 1000 is the conversion factor. So gross area required is equals to ultimate tensile load into 1000 is the conversion factor, kilonewton को न्यूटन में, divided by 0.9 is basically a SIT factor जो कि आपका strength reduction factor है, और Fy is the representing the yield strength of material. तो इवन इन द केस ऑफ ये था LRFD कंडीशन के अंदर, इवन द केस ऑफ अलोएबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड हम फार्मूलाज को इस तरह से यूज करते हैं, Fy ग्रॉस एरिया डिवाइड बाय ओमेगा इनटू 1000, और एरिया ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू अलोएबल टेंसाइल लोड या एक्चुअल टेंसाइल लोड इनटू 1670 बेसिकली इज अ कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड बाय Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. एंड सेकंड जो मेथड है, बेसिकली सेकंड मेथड इज द फ्रैक्चर इन द नेट सेक्शन. कि पहला मेथड था कि यील्डिंग की वजह से यील्डिंग लिमिट स्टेट अचीव हो जाती है, और दूसरे में है फ्रैक्चर लिमिट स्टेट अगर अचीव हो जाती है, यानी कि मटेरियल यील्ड हो जाता है, और दूसरे में फ्रैक्चर फेल्यूर अपीयर होता है, अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी आ जाती है दूसरे के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम पहले केस में ग्रॉस एरिया यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम नेट एरिया यूज करते हैं. तो अल्टीमेट नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू जो है वो हमारे पास वहां था यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ.